Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our new chapter of the Polity through MCQ series, and these MCQs are strictly based on the book M. Lakshmikant. Now before starting the chapter, let me give you a brief introduction about the chapter and then straight away we will move to the questions. Then questions मैं read करूँगा and then I'll give you the explanation part also. So let us start with the chapter of parliamentary committees. Now we have studied in Parliament chapter that the Parliament is the supreme executive as well as the legislative body. So, the vast functions that are performed by the Parliament are so extensive that it is impossible for the Parliament to do it solely. So, there is a provision of parliamentary committees. Now, these parliamentary committees are mentioned in the constitution. These are mentioned, but no specific provisions have been done for this. Okay, no specific provisions are there for parliamentary committees, although they have been mentioned in the constitution. Okay, so where are these mentioned? So these are dealt with the rules of the both houses. These are dealt with the rules of the houses of the parliament. Okay, so now the parliamentary committees find no mention in the constitution, and these committees are appointed, elected by the speaker or the chairman of the house. These committees works on the direction of the given works on the directions that are given by the speaker. These committees, the reports of these are reported to the speaker only. The secretariat for these parliamentary committees are provided by the Lok Sabha and Rajya Sabha respectively in these cases. Now, these are of two types. The first one is standing committee, the second one is ad hoc committee. Now, what is a standing committee? Standing committee is the one which is permanent in nature. It is constituted yearly or periodically. मतलब ये फिक्स है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है. Whereas ad hoc committees are temporary and these cease to exist once the function assigned to them has been performed. Okay, now we are going to study different type of standing committees and then ad hoc committees. मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैंडिंग कमिटीज़ में फाइनेंशियल कमिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी हेयर ओनली. ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्टैंडिंग कमिटीज़ की, तो कितने टाइप की स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं? व्हाट आर इट डिफरेंट टाइप्स? सबसे पहला तो फाइनेंशियल कमिटीज़ होती है. व्हाट आर दीज फाइनेंशियल कमिटीज़? आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी है या कोई भी पॉलिटी की बुक पढ़ी है तो यू शुड नो दैट देयर आर एस्टिमेट्स कमिटी, then there comes public accounts committee, then there comes committee on public undertaking. Now estimates committee is the largest committees, 30 members होते हैं, ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको, ठीक है. Whereas public accounts committee में 22 members, 15 from Lok Sabha plus 7 from Rajya Sabha. Public undertakings में भी 15 from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha. Other than that, फाइनेंशियल कमिटी देयर आर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड इनकी टोटल जो नंबर हैं दीज आर 24. देन कम्स थर्ड टाइप ऑफ कमिटी, दैट इज कमिटी टू इंक्वायर. सो दीज कमिटी टू इंक्वायर, जो भी हाउस में कंडक्ट होता है उनको इंक्वायर करने के लिए कमिटीज़ होती है. ये 3 टाइप्स ऑफ दिस इज, फर्स्ट वन तो पटिशन है, कमिटी ऑन पटिशन. सेकेंड वन इज कमिटी ऑन privileges of the rights of the member of the parliaments, and then there comes the ethics committee कि जो वर्क हो रहा है इन दी हाउस इट इज़ एथिकल और नॉट, और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच द प्रोविजंस दैट आर गिवन इन द बाई लॉज रेगुलेशन रूल्स, उनके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, एंड एथिकल है या नहीं. ठीक है, 3 टाइप्स हमने यहाँ देखे. देन कम्स द कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल. स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल के अंदर में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज़ आर देयर, सच एज कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, then there is committee on welfare of scheduled caste and scheduled tribe, then there is committee on empowerment of women. Now these all we will study क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक आपको आइडिया होना चाहिए कि ऑल ऑफ दीज आर स्टैंडिंग कमिटीज़, ओके, दैट आर परमानेंट इन नेचर. देन डे टू डे बिजनेस के लिए अगर मैं फिफ्थ टाइप की कमेटी की बात करूँ, अंडरस्टैंडिंग कमेटी,
देन डे टू डे बिजनेस के लिए भी कमिटीज़ होती हैं, सच एज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी. देन कम्स द रूल्स कमेटी. देन एक और कमेटी होती है, डैट इज़ कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स. तो ये डे टू डे बिजनेस में जो मेंबर से रिलेटेड होती हैं वो होती हैं. देन देयर इज़ हाउस कीपिंग कमेटी. दीज ऑल आर स्टैंडिंग कमिटीज. इट मीन्स दैट दीज आर परमानेंट इन नेचर. हाउस कीपिंग कम्युनिटीज़ में क्या, जैसे जनरल पर्पज कमेटी, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी एट्सेट्रा, दीज ऑल आर टाइप ऑफ स्टैंडिंग कमेटी. देन अगर मैं बात करूँ एडहॉक कमेटी की, तो एडहॉक कमेटी के दो टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इंक्वायरी कमेटी and the second one is advisory committee. What is an inquiry committee? So these inquiry committees are constituted from time to time either by the two houses of the parliament. ठीक है, either of the two houses of the parliament adopt करते हैं एंड द स्पीकर इसको अपॉइंट करता है. एंड जब भी इसका पर्पज सर्व हो जाता है तो दिस सीज टू ऑपरेट. अदरवाइज ऑन दी अदर हैंड व्हाट इज़ एन एडवाइजरी कमेटी, कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट से पास हुआ है तो द सेलेक्ट बिल इज़ देन फॉरवर्डेड टू दीज कमेटी, जो कि कंसिडर करती हैं इस रिपोर्ट को एंड देन इस पे अपना रिपोर्ट या एडवाइस देती हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अभी जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस्टेब्लिश हुई है ऑन वक्फ बोर्ड बिल. आपने अगर करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा. सो दीज आर टाइप ऑफ सेलेक्ट बिल. यहाँ पे फॉर एग्जांपल वक्फ बोर्ड था, वक्फ बोर्ड का बिल उसको जेपीसी में भेजा. ठीक है, तो जब भी ये पर्पस सर्व हो जाएगा तो ये कमेटी सीज हो जाएगी ऑपरेट करने से. ऑल्सो दीज कमिटीज़ की जो रिकमेंडेशंस होती हैं दैट इज़ एडवाइजरी इन नेचर. ठीक है, बाइंडिंग नहीं होती है रिकमेंडेशन. द वर्क इज जस्ट एडवाइजरी इन नेचर. नाउ लेट अस कम टू द फाइनेंशियल कमिटीज एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सो वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट ओनली. बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के वो आई हैव इंक्लूडेड इन द एमसीक्यू पार्ट. ओके, so now let's start with the public accounts committee. Now first of all it was established in the year 1921. ठीक है, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था ना 1919 का, उस टाइम पे उस एक्ट के प्रोविजन के अंदर दिस कमेटी वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1921. देन members are completely elected from the parliament. Also the minister is not a member of this committee. Also a important point to note here is it has 22 members. 22 members में 15 members होते हैं लोकसभा से एंड 7 members होते हैं राज्यसभा से. ठीक है, टेन्योर ऑफ द मेंबर इज़ 1 year. ठीक है, 1 year के बाद दोबारा री इलेक्ट होती है. एंड द मोड ऑफ इलेक्शन या सेलेक्टिंग द मेंबर्स इज बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. Also I have told you a minister is not a member of this committee. एक important point आपको यहाँ नोट करना है. 1967 से एक कन्वेंशन, एक प्रथा जिसको हम कहते हैं, a convention is being followed. And what is this convention? That the chairman of the committee is selected from the opposition. लीडर होते हैं जो अपोजिशन के, मोस्टली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वो लीडर होते हैं या चेयरमैन होते हैं. क्यों ऐसा होता है दिस आई विल टेल यू अभी व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू दी फंक्शन ऑफ दिस कमिटी. सो व्हाट आर नाउ द फंक्शंस? द फंक्शन, द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन इज टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग. ठीक है, विच इज लेड डाउन बाय कैग. कैग अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को एंड द प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट को हाउस में लेके आते हैं. एंड दिस कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करने का काम होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का. कैग को बोला जाता है हेल्पर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होते हैं उनको एग्जामिन करना एंड फाइनेंस अकाउंट जो होते हैं गवर्नमेंट के उनको एग्जामिन करना. अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होते हैं आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा. सो एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, एक तो देखो बजट जब बनता है देयर इज एन एस्टीमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर कि भाई हमें 1000 करोड़ रुपया लगने वाला है स्कीम के ऊपर. एंड देन देयर कम्स द एक्चुअल एक्सपेंडिचर कि भाई कितना एक्सपेंडिचर हुआ. मान लो 500 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ. So the appropriation account compares the actual expenditure with the expenditure that was sanctioned by the parliament. ठीक है, what is then finance account? So the finance account shows the receipts, मतलब the government
जो मनी रिसीव करती है थ्रू टैक्सेस, ठीक है, कैपिटल रिसीट होती है, रेवेन्यू रिसीट होती है, दिस इज प्योरली एन पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमी ऑल्सो, सो वहाँ पे मैं आपको सारा ये एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो फाइनेंसेस इंक्लूड द रिसिप्ट, मे इट बी कैपिटल रिसीट, मे इट बी रेवेन्यू रिसीट, दीज फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द रिसीट, एंड देन देयर इज डिसइम्बर्समेंट और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी टू टाइप्स के होते हैं, वन इज कैपिटल एंड देन अदर वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड देन फाइनेंस अकाउंट को एसेस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है विथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। नाउ इट इज सेड दैट द कैग, ठीक है, कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल, विच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट एक्ट्स एज अ फ्रेंड, गाइड and philosopher to the committee, that is public accounts committee. So a question can come यहाँ से कि which of the following committees को CAG हेल्प करता है एज अ गाइड, फ्रेंड एंड अ फिलोसफर, ठीक है। सो योर आंसर वुड बी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एंड रिमेंबर 22 मेंबर्स होते हैं, 15 कम्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, एंड द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑल्सो जैसे मैंने बताया, किसी भी कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होती है, द रिकमेंडेशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। देन देयर कम्स एस्टिमेट कमेटी, दिस इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, 30 मेंबर्स होते हैं एंड प्योरली लोकसभा से सारे मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता है, ऑल मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा। एंड ये क्वेश्चन आता ही आता है एक क्वेश्चन कमेटी से, जिसमें ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एस्टिमेट्स कमेटी के मेंबर्स कहाँ कहाँ से होते हैं। सो दिस इज द लार्जेस्ट कमिटी एज वेल एज ऑल द मेंबर्स आर देयर फ्रॉम द लोकसभा। ओके, 1921 में एज अ फाइनेंशियल कमिटी दिस वाज सेटअप, बट लेटर पोस्ट इंडिपेंडेंस की मैं बात करूँ तो 1950 में ये फर्स्ट बार इस्टेब्लिश हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर जॉन मथई, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना, अगर रख सकते हो तो। क्वेश्चंस का नेचर जैसे चेंज हो रहा है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एस्टिमेट्स कमेटी वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथई 1950 में, ही वाज देन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। 30 मेंबर्स आर देयर एंड ऑल ऑफ देम आर सिलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा। मीन्स ऑफ इलेक्शन क्या होता है, सेलेक्टिंग द मेंबर्स क्या होता है, वही सेम है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। Term of office is 1 year, just like the Public Accounts Committee, and the chairman of the committee is appointed by the speaker. चेयरमैन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन तो राज्यसभा में होता है, इस कमेटी के मेंबर्स तो राज्यसभा से होते ही नहीं हैं, तो व्हाई वुड देयर बी चेयरमैन अपॉइंटिंग द प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी। सो स्पीकर इलेक्ट्स द चेयरमैन ऑफ दिस। नाउ व्हाट इज द फंक्शन, द फंक्शन इज टू examine the estimates included in the budget and suggest economies in public expenditure। economies का क्या मतलब है, economies का मतलब है there should be efficiency, there should be effectiveness in the administration, in the policy making। इन्हीं सब में एडवाइस करने के लिए there is estimates committee, and the recommendations of this committees are also totally advisory in nature and not binding। I hope the thing is clear now. Now the next one is Committee on Public Undertaking। सबसे लेट तो ये कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1964, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 22 होते हैं, 15 मेंबर्स हेल्स फ्रॉम लोकसभा एज वेल एज 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। स्पीकर या चेयरमैन इलेक्ट करते हैं, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि लोकसभा के स्पीकर ही इलेक्ट करेंगे अबाउट द चेयरमैन, ठीक है, अबाउट द मेंबर। राज्यसभा के चेयरमैन दैट इज़ एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होता है विच इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, वो इलेक्ट नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट आप एक एक्स्ट्रा याद रखना। एंड इनका वर्क क्या होता है पब्लिक अंडरटेकिंग का, सो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। I've already told you 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं। देन देयर कम्स एड हॉक कमिटी, इंक्वायरी कमिटीज़, एडवाइजरी कमिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नाउ लेट अस स्ट्रेट अवे मूव टू दी क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के साथ जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट होगा उसमें आई विल कवर दी रेस्ट ऑफ दी थिंग्स।
Now, first statement is, consider the following statements. After the annual financial statement is presented before the House of the People, it is examined by the Public Accounts Committee. Second statement क्या है? The Public Accounts Committee examines the report of the CAG of India after it is laid before the Parliament. Absolutely true. मैंने आपको बताया, CAG प्रेजेंट करते हैं रिपोर्ट हमारे प्रेसिडेंट को, एंड देन द प्रेसिडेंट लेज डाउन दैट रिपोर्ट इन द लोकसभा, एंड देन वर्क शुरू होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का. दे डायरेक्टली अंडरटेक दिस. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? आफ्टर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड बिफोर द हाउस, इट इज एग्जामिन्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. नो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो बात ही नहीं है, ये कैग की रिपोर्ट्स को ऑडिट करते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. करेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ओनली सेकेंड स्टेटमेंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Parliamentary Committee on Empowerment of Women was constituted in the year 1997. Now, मैंने आपको बताया था there are different type of committee, standing committee. तो उसमें मैंने बताया था there is an committee for the upliftment of scheduled caste and scheduled tribe. Again, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए भी कमिटी होती है. सो आई हैव डेल्ट विद दीज पॉइंट्स इन सब्सिक्वेंट MCQs, ताकि आपको वो कमिटीज़ भी सारी कवर हो जाएं. So the statement is absolutely correct. Why it is correct? It was established and it was constituted in the year 1997. ठीक है. 30 members होते हैं इस कमेटी में. From 20 are there from लोक सभा and 10 members are there from the राज्यसभा. ठीक है. Now इसके एडिशनल अभी मैंने बताया आपको there is a committee on welfare of SC/ST. तो उनके बारे में भी ध्यान रखना. 30 members उनमें भी होते हैं and 20 members are there from लोक सभा and 10 members are there from the राज्यसभा. एक और कमेटी मैंने अभी आपको बताई है which is a standing committee under the financial committee which is estimates committee. उसमें भी 30 members होते हैं. But do remember कि estimates committee is a financial committee and 30 members are only there from the solely from लोक सभा. राज्यसभा से मेंबर्स नहीं होते हैं एस्टिमेट्स कमेटी के. तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना. मैं आगे जैसे जैसे MCQs आई विल कवर, मैं आपको ये सारा रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको इशू ना आए. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हमारा क्या है. द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा. द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज which among the following are the merits of the parliamentary departmental standing committee constituted to scrutinize the budget proposals. ठीक है. तो let's see. Legislative control is now more legal because the committees are established by law. जैसे ही मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं है अबाउट द पार्लियामेंट्री कमिटीज़. ठीक है. कोई भी मेंशन नहीं है, कोई भी इनके रूल्स का मेंशन नहीं है. ठीक है. दीज आर कंडक्टेड एज पर द रूल्स ऑफ बिजनेस दैट इज मेड बाय द बोथ दी हाउसेज. तो ये मुझे बताओ कि बाय लॉ कहाँ से आ गया? लॉ तो है ही नहीं, रूल से रेगुलेट होती हैं ये कमिटीज़. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. दैट इज़ वाई एक्सप्लेनेशन पार्ट अगर आप मेरा देख लोगे ना इन MCQs में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट हमने डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया यहाँ से. ठीक है. देन देयर कम्स स्टेटमेंट 2, 3 and 3, 4. अभी हमें पता है थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि दोनों ऑप्शन में है. एक बार 4 देख लेते हैं, एक बार सही स्टेटमेंट सेकंड देख लेते हैं. जो भी सही होगा वी विल गेट टू नो द आंसर. नाउ 4 क्या है? द राज्यसभा एंड द अपोजिशन पार्टीज कैन प्ले अ ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग फाइनेंशियल कंट्रोल. ऑब्वियसली डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ डिफरेंट होती हैं. कितनी सारी उसमें कमिटीज़ होती हैं जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर डिपार्टमेंटल कमिटीज़ की बात करूं तो 31 मेंबर्स होते हैं ऑन एन एवरेज. ठीक है. ईच स्टैंडिंग कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं. 21 फ्रॉम लोकसभा होते हैं एंड 10 मेंबर्स आर देयर फ्रॉम द राज्यसभा. ठीक है. 24 मैंने बताया टोटल नंबर्स ऑफ देयर आर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़. 8 वर्क अंडर डायरेक्ट परव्यू ऑफ राज्यसभा एंड जो 16 हैं दीज वर्क अंडर लोकसभा. तो डायरेक्ट क्रिएटर रोल तो है ही है ना राज्यसभा का. 8 कमिटीज़ को वो रेगुलेट कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं. तो ऑब्वियसली द राज्यसभा का कंट्रोल है. 4 स्टेटमेंट हमारा सही है. तो वी हैव कम टू आवर आंसर. क्या आंसर होगा हमारा? आंसर हमारा होगा
हाँ सॉरी, मैंने उस टाइम पे 2 बोल दिया था, सही है। नहीं, 3 क्वेश्चन दोनों में है, तो लेट अस सी 4। 4 तो हमारा करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट हैव बीन नॉमिनेटेड टू हेल्प द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं होते हैं एक्सपर्ट्स इनमें। दीज मेंबर्स कंस्टिट्यूट सोली द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा ईदर राज्यसभा और बोथ। एक्सपर्ट्स कहाँ से आ गए? सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग था। करेक्ट से आंसर क्या हो गया? 3 एंड 4। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? ओके, सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यस दिस इज अ फाइनेंशियल कमेटी। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। एस्टिमेट्स कमेटी, यस दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल कमेटी विच इज अ स्टैंडिंग कमेटी इन टर्न। 30 मेंबर्स होते हैं, ऑल द मेंबर्स हेल फ्रॉम द राज्यसभा लोकसभा। कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इज ऑल्सो ए फाइनेंशियल कमिटी। कितने मेंबर्स होते हैं? 22, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। तो विच इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी? कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑब्वियसली इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी। सो 4 का डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पार्लियामेंट्री कमेटी, एंड देन उसके फंक्शन को हमें बताना है। व्हाट इज सेलेक्ट कमेटी? सेलेक्ट कमेटी का क्या रोल होता है? कमेटी ऑन पिटिशंस का क्या रोल होता है? नो, सेलेक्ट कमेटी का क्या रोल होता है कि इट स्क्रूटनाइजेज द बिल क्लॉज बाय क्लॉज एंड सजेस्ट चेंजेस। सेलेक्ट कमेटी का क्या मतलब होता है? क्लॉज है मतलब पूरे बिल के किसी पार्ट को सेलेक्ट कर लिया, एंड जिस पार्ट में डिस्प्यूट है, एंड इस सेलेक्ट किए हुए क्लॉज पे डिस्कशन करना। नाम भी तो बता रहा है ना भाई, सेलेक्ट स्क्रूटनाइजेज द बिल क्लॉज बाय क्लॉज। सेलेक्ट कर लिया क्लॉज एंड देन सजेस्ट चेंजेस। तो ए का तो हमारा 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हमारा एस्टिमेट्स कमेटी देख लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी। एस्टिमेट्स कमेटी का क्या होता है फंक्शन? इट एग्जामिन्स द डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर इन बजट। ठीक है, इकोनॉमी को मेंटेन करना, बताया था ना, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर करना का काम किसका था? डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर का को एग्जामिन करने का काम एस्टिमेट्स कमेटी का ही था। अभी देखो, एस्टिमेट्स को आप अलग से मत देखो, याद करो ये फाइनेंशियल कमेटी के अंदर आ रही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, मुझे आप बताओ। एलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन, नहीं, ये काम होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, टू डिस्कस द बिजनेस फॉर द डे। बिजनेस फॉर द डे, ये काम होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। आप मुझे बताओ किस क्वेश्चन इनमें से कौन से ऑप्शंस में, फंक्शन वाले में, कहाँ पे इकोनॉमी की बात हुई है? फर्स्ट में तो नहीं हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कहीं बात नहीं हुई है। रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ये भी पटिशंस कमेटी का काम होता है। फाइनेंस की तो कोई बात ही नहीं है। स्क्रूटनाइज द बिल, फाइनेंस की बात नहीं हो रही है। एक्सपेंडिचर आ गया ना यहाँ पे, इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। अब आपको नहीं भी पता है ना किस कमेटी का क्या काम है, तो आप इस एस्टिमेट्स का तो डायरेक्टली बता सकते हो, लॉजिक से बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का क्या काम होता है। इनका काम होता है, इट एलोकेट्स टाइम फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस आइटम्स। 5 का हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? हमने देख लिया ए का 4 किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है। देन हमारा क्या हो गया? पिटिशन, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिविजुअल, ए का 3 हो गया, ये भी दोनों में है। देन सी से हमें पता चल जाएगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, सी का 1 इज करेक्ट आंसर। सी का 1 इज करेक्ट, सो our answer is A. Okay, now let's move to the next question. The chairman of the Public Accounts Committee of the Parliament is appointed by, जब मैं ये बता रहा था आपको, I have told you Speaker of the Lok Sabha elects the chairman of the Public Accounts Committee. So this is one is clear, I think. Let's move now to the next question. Which of the following parliamentary committee consists exclusively the members of Lok Sabha? I already told you. Public Accounts Committee, 22 members, 15 Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. Estimates Committee, 30 members purely from Lok Sabha. 7 का B हमारा correct answer है. Let's now move to the next question. Which of the following committees are helped by the CAG in their work of exercising parliamentary control over the executive? कैग का काम क्या है? फाइनेंसेस देखता है, ऑडिट करता है। तो अब मुझे बताना कौन कौन सी कमिटीज़ इसमें से ऐसी हैं जो कि कैग के वर्क से रिलेटेड है। अब मुझे बताओ, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस कमिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंडिविजुअल मेंबर्स एंड कलेक्टिव
प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमने पढ़ा ना, आर्टिकल 105 में मैंशनड है। दो टाइप्स के प्रिविलेजेस मिलते हैं, सबसे पहले तो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस कुछ मिलते हैं, सम ऑफ देम आर कलेक्टिव। तो कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस का मैटर ये है, तो कैग का तो कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड वी विल एलिमिनेट डायरेक्टली, सेकंड हमने डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया। आंसर पे हम आ गए 1 और 4। वी नो दैट पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का क्या वर्क होता है, कैग एक्ट्स एज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर टू दिस कमिटी। वी नो दैट द फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली राइट। एस्टिमेट्स कमिटी इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, ठीक है, सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स स्टैब्लिश इन 1964, इसका क्या काम होता है, पब्लिक इंटरप्राइजेज जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनके रिपोर्ट्स को ऑडिट करना, और इनका काम कैग भी देखता है। तो समवॉट दिस कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इज रिलेटेड टू कैग, दैट इज वाई 8 का हमारा करेक्ट आंसर वुड बी 1 और 4। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द गिवन कमिटीज। नाउ इवोल्यूशन हमें बताना है। नाउ पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इसका मैंने क्या बताया था 1964 में। एस्टिमेट्स कमेटी 1950s में बनी थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारी कब बनी, सबसे पहले 1921 में। सो करेक्ट ऑर्डर हमें सेट करना है, तो भाई कर देते हैं ना सेट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1921, एस्टिमेट्स कमेटी 1950, जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे एंड कृष्णन मेनन की रिकमेंडेशन पे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स इन द ईयर 1964। आई होप कि आपको ये कमिटीज़ वाला चैप्टर समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर आ रहा है तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ यू आर गेटिंग इट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, कौन सी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। तो कमेटी ऑन ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान कहीं पढ़ा है, नहीं। रेलवे कन्वेंशन नहीं पढ़ा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, अरे पढ़ा तो है कि ये होती है, ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जॉइंट कमेटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग स्टैंडिंग नहीं है, ये एड हॉक हो सकती हैं। अभी मान लो फर्टिलाइज़र के प्राइस को रेगुलेट करना है तो उसके लिए कमेटी बना दी। जब भी ये फर्टिलाइज़र, देखो कितनी स्पेसिफिक है ये कमेटी कि फर्टिलाइज़र के प्राइसिंग के ऊपर ये कमेटी बना दी, ठीक है। सो व्हेन ये फर्टिलाइज़र का प्राइस ये कमेटी असरटेन करके एडवाइस कर देगी तो ऑटोमेटिकली इसका फंक्शन ख़त्म हो गया। एंड जैसे फंक्शन ख़त्म हो गया तो दिस इज़ अ एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, स्टैंडिंग कमेटी इज़ परमानेंट इन नेचर, ठीक है। सो यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो आप, ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेचर बस याद रखना, नेचर क्या होता है कमिटीज़ का, एल्स तो बाकी सारा कुछ कर लोगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कौन से करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं हमें। फर्स्ट वन इट एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। द सजेशंस मेड बाय द कमिटी आर नेसेसरली एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहना क्या चाह रहा है इन अदर वर्ड्स कि द रिकमेंडेशंस दैट आर मेड और द सजेशंस दैट आर मेड बाय दिस कमिटी आर बाइंडिंग। नो दे आर नॉट, दीज आर एडवाइजरी इन नेचर, बहुत बार बता दिया था मैंने, ठीक है। सेकंड को भैया कैंसिल कर दो, करेक्ट आंसर क्या है 1, 3 एंड 4। फोर्थ भी देख लेते हैं। इट इंश्योर्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी इन ऑल ट्रांजेक्शंस, एब्सोल्युटली द कमिटी फंक्शंस इन ए नॉन पार्टीशन मैटर। नॉन पार्टीशन मैनर में तो कवर करेगी ही, 22 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, तो नॉन पार्टीशन मैनर में ही कंडक्ट होते हैं, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स भी होते हैं, कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट का, ठीक है। 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। ये चीज़ मैं आपको कितनी बार बता दी अभी तक कि द कृष्णन मेनन कमिटी इन द ईयर 1964 रिकमेंडेड द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इफ़ आई टॉक अबाउट द एस्टिमेट्स कमिटी देन जिनका नाम आएगा वो है कृष्णा मेनन कह रहा हूँ, जॉन मथाई, एंड ये इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1950। नाउ जो बाकी कमिटीज़ लिखी हैं इनका भी रोल है, तो इनको भी आप नोट कर लेना। अशोक चंदा कमिटी रिकमेंडेड टू सेपरेट दूरदर्शन, जो चैनल था ना पहले, दूरदर्शन एंड आकाशवाणी, इनको सेपरेट करने का रिकमेंड किया था अशोक चंदा कमेटी ने, एंड ये सेपरेट भी हुए थे इन द ईयर 1977 में। गोडवाला कमेटी is credited to giving formal shape
to the ideas and institution of mixed economy. Ideas of mixed economy that was propounded by the socialist leader, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू. इनको फॉर्मलाइज करने का जो है वो क्रेडिट जाता है गोलवाला कमेटी को. नाउ टी कृष्णामाचारी कमेटी इज रिलेटेड टू दी रिफॉर्म्स इन दी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए है. नो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. नाउ कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है. नाउ कमिटी ऑन पिटीशन इज़ कमिटी, स्टैंडिंग कमेटी टू इंक्वायर का पार्ट है. अब इसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. सो याद करो मैंने क्या बताया था, स्टैंडिंग कमेटी टू इंक्वायर में 3 टाइप्स की कमेटी होती हैं. एक तो पिटीशन यहाँ पे दिया है, दूसरा इज़ प्रिविलेजेस कमेटी एंड तीसरा इज़ कमेटी ऑन एथिक्स. देन स्टैंडिंग कमेटी टू स्क्रूटनाइज करने के लिए देयर इज़ अ कमिटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस एश्योरेंस, देन देयर इज़ कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, देन देयर इज़ कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एंड देन देयर इज़ कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. सो ये भी हमारा करेक्टली मैच है. देन देयर इज़ कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट रिलेशंस. ये क्या है, स्टैंडिंग कमेटी टू इंक्वायर. नहीं भाई, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यहाँ पे कहाँ से आ गई. ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज रिलेटेड टू कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, नॉट अ कमिटी टू इंक्वायर. ठीक है, सो सी हमारे यहाँ पे नॉट करेक्ट मैच स्टेटमेंट है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट्री कमिटीज. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें. The Public Accounts Committee and the Public Undertaking Committee are joint committee of the both houses of the parliaments. Yes, the statement is true. लोकसभा से दोनों कमिटीज़ में 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 7 मेंबर्स होते हैं. नेक्स्ट इज 17 डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटी वेयर अर्ली इस्टेब्लिश इन 1990s. करेक्ट स्टेटमेंट है, फैक्चुअल है, बट याद रखना. देयर आर स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड एड हॉक कमिटीज़. 2 टाइप्स ऑफ कमिटीज़ आर देयर, वी हैव ऑलरेडी seen. The estimate committee and the public accounts committees are always headed by the senior leader of the ruling party and coalition. No, the speaker appoints the head of these committee. ऐसा नहीं है कि सीनियर लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी हमेशा इसको लीड करेंगे. ये सीनियर पार्टी वाला जो क्लॉज था ना, दिस इज सोली फॉर द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, नॉट द एस्टिमेट्स कमिटी. ठीक है, सो डी स्टेटमेंट हमारा इज नॉट करेक्ट. लेट्स नो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी स्क्रूटनाइजेज इन डिटेल द रिपोर्ट ऑफ द कैग. कौन सी कमेटी है, तो हमने देखा दिस इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट लेट्स नो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच कमेटी. सो ध्यान रखना, द रूल्स कमेटी जो होती है ना, रूल्स कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसलिए मैंने MCQ इंक्लूड किया इसमें. Now, which of the following committee consists of representatives of both the houses, namely Lok Sabha and Rajya Sabha. यहाँ पे जहाँ पे सबसे पहले एस्टिमेट्स कमेटी दिखे उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि इसके 30 के 30 मेंबर्स आर फ्रॉम दी लोकसभा. ठीक है, फर्स्ट हमने कर दिया यहाँ पे एलिमिनेट. देन 3-4 तो है ही हमारा, हमें चेक करना है अबाउट द स्टेटमेंट सेकेंड. सो द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. नाउ इज़ दिस राइट. येस, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इसमें दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं. ठीक है, दिस वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1953. बोथ द हाउसेज आर देयर. 15 मेंबर्स होते हैं इसमें. एंड फंक्शन क्या होता है, जो भी पावर्स मिली हैं टू द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द बाई लॉज, फ्रॉम द रूल्स, वो प्रॉपरली एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये काम होता है द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का. तो मैंने एक और आपको कमेटी यहाँ पे क्लियर कर दी. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3. सॉरी 3 एंड 4, ये दोनों तो नहीं होती हैं. ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मैंने बताया अभी आपको 15 जो मेंबर्स होते हैं ईच हाउस के होते हैं. मतलब कि द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन सेपरेटली लोकसभा के लिए होती है एंड देन सेपरेटली हमारी राज्यसभा के लिए होती है. ठीक है, दोनों के मेंबर्स नहीं होते हैं इस कमेटी में. दैट इज़ वाई द स्टेटमेंट इज द सेकेंड वन इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, 3 and 4 इज राइट. लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18.
क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एस्टिमेट कमिटी. It suggests alternative policies in order to bring efficiency and economy in administration. Correct. It examines whether the money is well laid out within the limits of policy implied in the estimates. Yes, as the name suggests, it's estimates. It suggests the forms in which the estimates are to be presented. Yes. It helps in checking the governmental extravagance in making demands as its report is debated in the House. ये काम होता है appropriation account, finance account. And this is dealt by the public accounts committee, not the estimates committee. ठीक है, not correct हमारा statement D है. Let's now move to the next question, that is which of the following committees is constituted by Lok Sabha but the comprises the members of Rajya Sabha also. ठीक है, तो we know public accounts committee जो होती है it comprises 22 members, 15 from Lok Sabha, 7 from Rajya Sabha. Now if I tell you about the public accounts committee, तो जब ये लोकसभा में होती है सिर्फ दोनों हाउस के लिए ईच कमिटीज़ बनती हैं, सेपरेट कमिटीज़ बनती हैं. लोकसभा की कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा की कमिटीज़ में 11 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, टाइम टेबल को रेगुलेट करना, टाइम एलोकेट करना, ये काम होता है ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी. इफ़ आई टॉक अबाउट द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, तो किसी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस का ब्रीच हो रहा है तो वहाँ पे कमिटी ऑन प्रिविलेजेस आती है. When it is established for Lok Sabha, then there are 15 members, and when it is established for Rajya Sabha, there are 10 members. Now, if I talk about the Rules Committee, this committee is credited to make rules of procedure and conduct of the House. लोक सभा में 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 16 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, सेपरेटली ये तीनों की तीनों जो है ना सेपरेटली बनाई जाती हैं. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, मिक्स करके बनती है कमेटी, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा. आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट दीज कमिटीज़. ठीक है, बहुत आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है. आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. नाउ द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज प्रेजेंटेड टू दी होम. तो ये कमिटीज़ को अपॉइंट कौन करते हैं? स्पीकर ही तो करते हैं ना. स्पीकर किधर बैठते हैं? स्पीकर इज़ द हेड ऑफ लोकसभा. किसको प्रेजेंट होगी? लोकसभा में प्रेजेंट होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. रूल्स कमेटी का काम क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड पब्लिक अंडरटेकिंग. ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि आपने ऑलरेडी कर लिया है. ठीक है, ये सारी कमिटीज़ के बारे में बता चुका हूँ. तो इस क्वेश्चन में आप रिवाइज करो वीडियो को पॉज करके कि किसका क्या आंसर होना चाहिए. आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके. लेट मी स्ट्रेट अवे कम टू द आंसर. आंसर हमारा इसका हो जाएगा बी. एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा नहीं क्योंकि मैं अभी पिछले 20 क्वेश्चंस में ये सारी कमिटीज़ को इन डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ. तो आई होप कि आप ये इसको सही आंसर आप इसका दोगे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज फाइनल कंट्रोल ऑन पब्लिक फाइनेंसेस थ्रू विच कमिटी. कौन सी कमिटी होती है? तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी तो है. क्या बताया था मैंने? एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट्स के ऊपर कंट्रोल होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का. ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. यहाँ पे देखो एक और कमेटी, हाँ ठीक है, ओके. लेट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इशू ऑफ वेदर अ कमिटमेंट मेड बाय ए मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट इज डिसाइडेड बाय विच कमिटी. So this is decided by the Committee on Government Assurance. Now, this Committee on Government Assurance was established in the year 1953. ठीक है, इसका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो भी एश्योरेंसेस दिए हैं, जो भी प्रोमिसेस किए हैं, जो भी अंडरटेकिंग्स दिए हैं मिनिस्टर ने, वो फुलफिल हुई हैं कि नहीं और वो टाइम टू टाइम फ्लोर पे आई हैं या नहीं आई हैं, ये काम होता है इस कमेटी का. ठीक है, जब दिस कमिटी इज़ मेड फॉर लोकसभा देन देयर आर 15 मेंबर्स एंड व्हेन दिस कमिटी इज़ मेड फॉर राज्यसभा सेपरेटली 10 मेंबर्स इसमें होते हैं. ठीक है, ईच अलग अलग लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए डिफरेंटली ये कंडक्ट होती हैं. तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा इसका रोल आपको. ठीक है, एक और कमेटी नहीं हमने यहाँ पे कवर कर ली. नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 24. 24 हमारा क्या है? विच वन of the following parliamentary committees acts as a watchdog on departmental expenditure and irregularities. We have studied multiple times. Public Accounts Committee हमारी related होती है, कैग की रिपोर्ट्स को ऑडिट करती है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, इन सारा को डील करने का काम होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का.
Let's now move to the next question, that is question number 25. Which of the following statement with respect to the Public Accounts Committee are true? Correct statement हमें बताना है. So the first one is it works on its work is based on the audit report of the CAG. Correct. It examines the account of the Government of India for appropriation made by the Lok Sabha. Correct. It examines the account of the autonomous and semi-autonomous body. हाँ एब्सोल्युटली यस. क्यों? क्योंकि कैग तो जो रिपोर्ट देती हैं वो ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के लिए भी दे सकती है ना. तो ये कमेटी तो कैग के रिपोर्ट्स को देखती हैं. तो ऑब्वियसली जो भी कैग काम करता है डायरेक्ट परव्यू आता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का. सो हमारा करेक्ट आंसर 1 2 3 सारा हो जाएगा. ठीक है. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. भैया कैसे रिलेटेड नहीं है? स्टेटमेंट गलत है. वाई? बिकॉज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 मेंबर्स होते हैं. 15 आर फ्रॉम सॉरी एक सेकेंड, हाँ 22 मेंबर्स होते हैं. 15 मेंबर्स हैं हमारे लोकसभा के एंड देन 7 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा 1 तो करेक्ट इनकरेक्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट इज रेलवे कन्वेंशन कमेटी इज एन एड हॉक पार्लियामेंट्री कमेटी. ऑब्वियसली अब रेलवे स्पेसिफिक हो गया ना, तो जब भी रेलवे के कन्वेंशंस को डील करने के लिए या कन्वेंशंस को अमेंड करने के लिए या उनकी वर्किंग को देखने के लिए कमेटी बनाई गई है तो ये एड हॉक कमेटी होगी. जब इसका पर्पस सर्व हो जाएगा तो इट वुड बी ऑटोमेटिकली डिजॉल्व. देखो स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती है ना उनके नेम्स देखो जेनेरिक होते हैं. जैसे फाइनेंशियल कमेटीज़ के अंदर देखो 3 कमेटीज़ मैंने बताएं. अभी देखो जो फाइनेंशियल कमेटी है, फाइनेंस तो ही काम है ना सरकार का. गवर्नमेंट का काम क्या है? फाइनेंसेस. पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा किधर को रहा है, तो यही काम होता है ना. अभी देखो जैसे रेलवे कन्वेंशन कमेटी, अब ये क्या है? रेलवे से स्पेसिफिक है तो काम होने पे ख़त्म हो जाएगी तो कौन सी कमेटी होगी? एडॉक. मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको एडॉक की. ठीक है. सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इज करेक्ट. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27. The Public Accounts Committee consists of 10 members from Lok Sabha and 5 members of Rajya Sabha. अब मुझे बताओ, अभी बताते हुए हम क्या स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्युटली गलत है. 22 होते हैं. 15 फ्रॉम लोक सभा, 7 फ्रॉम राज्य सभा. नेक्स्ट इज द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन्स बोथ द एप्रोप्रिएशन एज वेल एज द फाइनेंस रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कैग. एब्सोल्युटली मैंने फंक्शंस पे बताया था. सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. Let's now move to the next question. When were 17 departmental related standing committees set up on the recommendation of the Rules Committee of the Lok Sabha? कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1993. ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस एक बार देख लेना, समझ लेना कि रूल्स कमेटी के रिकमेंडेशन पे 17 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी 1993 में बनाई गई थी. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑन कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? तो इवॉल्व अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ द टर्म्स ऑफ डेलीगेशन. करेक्ट लग रहा है देखने से तो. इम्प्रूव द मेथड ऑफ द पब्लिसिटी ऑफ द रूल्स. ये भी करेक्ट लग रहा है. टू ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन जो मैंने बताया था ये रूल्स कमेटी का फंक्शन नहीं है? रूल्स बनाना, ले डाउन रूल्स, ये तो रूल्स कमेटी का फंक्शन था. तो ये सब ऑर्डिनेट का कैसे हो गया? हमें यहाँ बताना है नॉट अ फंक्शन, मतलब नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. सी तो हमारा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट होगा ना, क्योंकि दिस फंक्शन इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द रूल्स कमेटी. ठीक है. सो एंड रूल्स कमेटी का याद रखना, अगर लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो देयर आर 15 मेंबर्स एंड इफ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर राज्यसभा देन देयर आर 16 मेंबर्स. ठीक है. सी हमारा करेक्ट आंसर है. लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है कि द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन द लोकसभा कंटेन्स अपार्ट फ्रॉम द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू. बिल्कुल करेक्ट बात है. उसमें होता है प्रोविजंस होते हैं, ये बताया जाता है, रिकमेंड किया जाता है हाउ वी कैन रेज द रेवेन्यू. सेकेंड इज एनुअल आफ्टर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा द एस्टिमेट कमेटी एग्जामिन. यस, एस्टिमेट्स कमेटी एग्जामिन करती है कितना फंड दिया गया, कितना इम्प्लीमेंट हुआ, ये सारा तो एस्टिमेट्स कमेटी करती है. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट पहले फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड हमारा एस्टिमेट कमेटी से रिलेटेड स्टेटमेंट है. सो दोनों के दोनों करेक्ट है, बट दी सेकंड स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन्स दी स्टेटमेंट फर्स्ट. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द मेन फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ कैग. करेक्ट.
द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कंप्राइजेस मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ओनली, गलत। लोकसभा ओनली की एस्टिमेट्स कमेटी होती है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स में 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोक एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। A member of opposition can be appointed as the chairman of public accounts committee. Yes, ये कन्वेंशन 1967 से बना था, मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया है, सही स्टेटमेंट है। A member of parliament of the public accounts committee can be re-elected for the second term. Yes, re-election is possible. So ये भी ध्यान रखना, एक न्यू पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमारा बी है। Let's now move to the next question. At present, the number of standing parliamentary committee that exist to scrutinize the demands for various grants of ministries है, कितना इनका कितने नंबर्स हैं टोटल? तो 24 हैं टोटल, 24 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम्स द एस्टिमेट्स कमिटी ऑफ लोकसभा। देखते हैं क्या है। प्रिपेयर एस्टिमेट्स फॉर द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कहाँ प्रिपेयर करती है? एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ डिपार्टमेंट, नहीं भाई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है। प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, नहीं। सजेस्ट इकोनॉमीज टू बी मेड इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, कैसे इफेक्टिवनेस बढ़ाई जाए, यही तो काम होता है एस्टिमेट्स कमेटी का। सो हमारा डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ठीक है, डन। सो वी आर डन विद द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का चैप्टर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना यार, इंटरेक्ट किया करो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे तो आई विल नो कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। कि कुछ सजेशंस हैं वो भी दे दिया करो, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ में प्रॉपरली आपके हिसाब से फ्रेम कर पाऊँ, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।